So सब लोग आ गए? Yes. Today everybody is present. Good morning, all of you. So calculate wavelength of a third line of a bracket series in a hydrogen spectrum. ये लास्ट टाइम का ये क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट आर द मतलब ब्रैकेट सीरीज का मतलब क्या है? व्हाट मस्ट बी n1? हाँ वत्सल. ब्रैकेट सीरीज में सॉरी n1 क्या है? n1 n1 क्या है ब्रैकेट सीरीज में? n1 क्या है? 4. हाँ 4 है. करेक्ट करेक्ट. और n2 क्या होता है फिर? 5 6 7 and so on ना. So n1 is equal to 4 to n2 is equal to 5. This is your first line. Then n1 is equal to 4 and n2 is equal to 6. This is your second line. When I say n1 is equal to 4 and n2 is equal to 7, this is your third line, and so on. Now we have to calculate what? Wavelength. So formula 1 upon lambda is equal to, yes, Rydberg's constant z square into bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Now they are talking about what? Third line. So 1 upon lambda is equal to, this is what? 109700. 9070. Okay, multiplied by, it is hydrogen spectrum. So Z is 1 multiplied by 1 upon 4 square minus 1 upon 7 square. So it is 109700 multiplied by 49 minus 16 divided by 49 multiplied by 16. Okay, so that find out this and take the reciprocal to get the value of lambda. Understood? Okay, the unit for this is centimeter because the unit for Rydberg's constant. See, unit for these two is nothing. We do not have a unit for n. We have a unit for this, and that is nothing but centimeter inverse. Okay. Calculate the frequency of last line of the Lyman series in hydrogen spectrum. So पहले हम लोग क्या देखेंगे? बोलो जरा. पहले हम लोग ये पढ़ते हैं लाइमन सीरीज क्या है. Yeah, please tell me. What is that? N1 is 1. N1 is 1 और Yes, N2 sir. क्या होगा? N2 2, must be 3, 4. 2, 3, 3, 4 4, and so on infinite. When I say last line क्या होगा? infinity. N1 is equal to 1 और N2 क्या होगा? Infinity. Infinity. कर. Quite simple one.
Correct. सोहम, सोहम चेक कर. हाँ मृणाली, आई थिंक यू आर रॉन्ग. ये 1/∞ वत्सल 0 होता है. अरे बाप रे. Vatsal, what are you doing? Some random calculations. No, sir. See, then 1/λ is equal to RB, stick to the basics now, into Z square into bracket 1/n1 square minus 1/n2 square. So RB is nothing but 109,700. Z तो 1 है. 1/n1 क्या है? 1 है. So 1 square minus 1/∞ square. 1/∞ 0 होता है, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया.
ये 1 स्क्वायर है, तो आंसर 1 अपॉन लैम्बडा आ जाएगा 109,700. ना तो दे आज फ्रीक्वेंसी ना, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ. है ना. तो वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन हम लोग मान रहे हैं 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय, इसको मैं लेता हूँ 1.097 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर कितना होगा ये 1 2 3 4 5 10⁵ ना. यस और नो. तो ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁵ अप्रोक्सीमेटली, और ये 1.1 अगर मैंने लिया तो अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट. और 3 अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁵ आएगा. इसका यूनिट क्या होगा हर्ट्ज. 15 वगैरह कैसे आए. अच्छा हाँ, आई एम सॉरी, हाँ बराबर बराबर, ये मीटर पर सेकंड है ना, ये मीटर पर सेकंड है, आई एम सॉरी. तो ये तो और कम हो जाएगा फिर, मीटर पर सेकंड है ये. तो इसको अगर मैंने सेंटीमीटर पर सेकंड में लिया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर पर सेकंड कितना होगा 10⁻10 हो जाएगा ये, 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁵ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1.1. So approximately 3 × 10⁵ hertz. ये आंसर आना चाहिए. This must be the answer. क्या हो गया वत्सल, क्या गड़बड़ हो गया. I assume 1 square minus 1 upon n2 square is 0, तो मैं पूरा आंसर 0 आ. क्या लॉजिक है. 1 upon n² निकालना ही था ना, लेकिन वेदांत 10⁻10 कैसा. विराज क्या है ये कौन सा आंसर निकाला. नो सर, कैसा कैलकुलेशन मिस्टेक्स है. इतना बड़ा. ईशान, व्हाट इज दिस. Sir, I calculated wavelength. No problem na, but you have to calculate frequency. Just see. Yes, sir. I didn't see the question. यही इशू होता है बाद में. Ami, you got 10⁻15. I added instead of subtracting. What added? Good, very good. सोहम तुझं पण आन्सर भरपूर जास्त आलाय. हाऊ दॅट 10⁻8. मृणाली. Yes sir. अच्छा, Sir first वाला काढलाय. अगर कौमुदी रिडबर्ग कांस्टेंट ची वैल्यू 109 है ना, 10977 है ना. So 10977 ला I have converted into 1.097 into 10⁵. है ना ये. This I converted into 1.097 into 10⁵. समजलं का कौमुदी. Okay sir. कौमुदी तुझा चॅप्टर 1 झाला का. Sir, हाँ बोल ना. this 10970 is 1 by lambda. So if we are taking over here, it should come up. I made a mistake. No, but I have taken 1 upon lambda only, na. That goes in a numerator. Extremely sorry. I made a mistake. So that calculation will be high. Yeah. Thank you very much, Vatsal. तो ये हो जाएगा 1 upon lambda का वैल्यू है ये 1.097 into 10⁵. Correct. Somebody got 10⁵15. That is correct.
सो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 ना, 3.29. 3.29 into 10 raised to 15. Yes, yes, yes. Oh, sorry. Per second or hertz. Yes, yes. So one more problem. Okay. A certain electronic transition from an excited state to ground state of the hydrogen atom is one or more step gives rise to 5 lines in an ultraviolet region of the spectrum. How many lines does this transition produce in the infrared region of the spectrum? From an atom completely, gaseous atom obviously, completely. So when I say completely, तो अभी हाइड्रोजन के केस में N1 is equal to 1 होगा और N2 होगा infinity. N2 क्या होगा? Infinity. So that energy they have given you, how much? Minus 13.6 electron. Then what will be the energy required if we move from ground state to first excited state? That means we have to calculate. So समझो ये energy E1 मान लिया मैंने, that is 13.6 electron volt. Then अगर N1 is equal to 1 है तो N2 is equal to 2, तो E2 कितना होगा ये कैलकुलेट करना है. करो. एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना? What is the formula for energy? E is equal to minus 13.6. बोलो. Z square upon N square EV. N square EV. Correct. So you अभी यहाँ पे हाइड्रोजन है दोनों केस में, तो Z1 होगा. So फॉर्मूला क्या होगा? minus 13.6 upon N. ओके, सो वो ट्रांजिशन के लिए, ट्रांजिशन क्या होगा? मतलब यहाँ पे ये E1 है ना, इसको डेल्टा E1 बोलना है और ये डेल्टा E2 है. डेल्टा E1 का मतलब ये होता है, बोलो, E2 माइनस E1. सो डेल्टा E2 का मतलब होता है जो भी रहेगा वो, मतलब ये E2 यहाँ पे इंफिनिटी है, यहाँ पे होगा E2 माइनस E1, ऐसे होगा. सॉल्व करो.
एक बार मैं वापस समझा रहा हूं इस प्रॉब्लम को, सब लोग ध्यान से देखो। The ionization energy for hydrogen atom is 13.6 electron volt. Then the energy required in electron volt to excite it from the ground state to the first excited state. तो मैंने क्या लिखा है? Ionization energy is nothing but energy required to remove electron from atom completely. That is n1 is equal to 1 और n2 क्या होगा? Infinity. तो डेल्टा E1 कितना आया? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट इज डेल्टा E1 इज इक्वल टू E इंफिनिटी माइनस E1. सो E इंफिनिटी कितना होगा? तो फॉर्मूला क्या लिखा है? 13.6 is equal to minus 13.6 upon infinity square minus E1. तो मैंने E1 निकाला, कितना आया? minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये फर्स्ट शेल का एनर्जी आ गया. ये फर्स्ट शेल का एनर्जी आ गया. ठीक है, अभी मुझे कैलकुलेट करना है सेकेंड शेल का एनर्जी. वो कैसे करूंगा मैं? सेकेंड शेल का एनर्जी कैलकुलेट कैसे करूंगा मैं? ये देखो, माइनस 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 स्क्वायर. तो E2 आ गया माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 4. सो डेल्टा E फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट E2 माइनस E1. E2 है माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 4 और E1 है माइनस 13.6. तो माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करो. ये आ गया एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. अंडरस्टूड? यस. कितना आ रहा है आंसर इधर? बोलो. 10.2. 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वेरी गुड. एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, sir. चलो अभी वो पीछे वाला प्रॉब्लम है. ओके, लेट अस सी. हाँ, यहाँ पे ना एक चीज जो मैंने लैंग्वेज बोलते ना, लैंग्वेज, उसको हम लोगों ने मिस किया. वर्ड्स को हम लोगों ने मिस किया, तो मैंने भी मिस किया. देखो क्या है वो. A certain electronic transition from an excited state to ground state of hydrogen atom in one or more steps gives rise to 5 lines in ultraviolet region. अल्ट्रावायलेट रीजन है, मतलब वो लाइमन से. बट वो कैसे मालूम है? एक्साइटेड, मतलब जितने भी लाइंस है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ही आ रहा है. मतलब उसका N1 क्या रहेगा? हमेशा 1 रहेगा. तो ऐसे कितने लाइंस रहेंगे? तो देखो, जो जो फॉर्मूला मैंने बताया, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस. वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ लाइन. इसलिए अपना आंसर गलत आ गया. तो लाइंस कौन से हो सकते हैं? मैं उल्टा जाता हूं. उल्टा मतलब ऐसा हो सकता है ना, N1 इज इक्वल टू 1 तो N2 इज इक्वल टू 2. ये फर्स्ट लाइन हो गया.
n1 इज इक्वल टू 1, तो 1 हमेशा 1 ही रखना है, मतलब ग्राउंड स्टेट में ही आ रहा है ना सबको, तो n1 अपना हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो n2 क्या होगा, 3। ये सेकेंड लाइन हो गया, ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये सेकेंड लाइन हो गया। अभी थर्ड लाइन देखो क्या होगा, n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू व्हाट, 4। ये थर्ड लाइन हो गया। फोर्थ लाइन क्या होगा, n1 इज इक्वल टू 1 और n2 क्या होगा, 5 होगा। ये हो गया फोर्थ लाइन। और फिफ्थ लाइन क्या होगा, n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू व्हाट, 6 होगा। 5 ही लाइन चाहिए ना, तो हो गए 5 लाइन। तो इसका मतलब अपना n2 कितना है, 6 है। कितना है, n2 अपना 6 है। अंडरस्टूड। ये जो लिखा है ना मैंने फर्स्ट लाइन, उसमें वो इंपॉर्टेंट चीज है, एंड विच वी मिस दैट, we miss over there. I repeat, a certain electronic transition from an excited state, मतलब upper energy state, to the ground state. Now when I say ground state, इसका मतलब वहां पे वो हमेशा किधर जाएगा, फर्स्ट शेल में ही जाएगा। यहाँ पे n1 हमेशा 1 ही होना चाहिए इस प्रॉब्लम में। अंडरस्टूड। तो इसका मतलब अपना n2 जो है वो n2 हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। n2 क्या रहेगा, हमेशा 6 रहेगा। इज दैट क्लियर? तो देखो अभी ये भी ध्यान से देखना। तो यहाँ पे कितने लाइन, तो यहाँ पे लाइन होगा n1 इज इक्वल टू 3, n2 इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट लाइन हो गया। n1 इज इक्वल टू 3, n2 इज इक्वल टू 5। ये सेकंड लाइन हो गया। n1 इज इक्वल टू 3, n2 इज इक्वल टू 4। ये थर्ड लाइन हो गया। मतलब पैशन सीरीज में कितने लाइन रहेंगे, 3 लाइन रहेंगे। इधर देखो यहाँ पे n2 6 है और यहाँ पे भी n2 6 है। यहाँ पे क्या होगा देखो, n1 इज इक्वल टू 4 तो n2 इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट लाइन हो गया, मतलब फर्स्ट में एक लाइन हो गया, फर्स्ट लाइन नहीं बोल सकते उसको हम लोग। n1 इज इक्वल टू 4, n2 इज इक्वल टू 5। ये सेकंड लाइन हो गया, है ना। बस एक ही बनेगा, 4 to 4 तो ट्रांजिशन है ही नहीं, तो इसमें कितने लाइन बने, 2, और इसमें एक ही लाइन बनेगा। सो टोटल लाइंस कितने बने, टोटल लाइंस हो जाएंगे 3 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। दैट इज द आंसर। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक अलग तरीका है। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। Here we are not going to use the formula. Remember this thing. Okay? Why are we not using formula? They are not asking total number of lines. They are asking only those lines which are coming in a ground state. Is that okay? Please write down this. सबको समझ में आई है? Anybody having any doubt here? Please, Vedika, is that the method you did or something else you did? No, this is the method. Okay, good, very good. चलो, हो गया सबका? Let us start now for the next concept. Next concept की तरफ जाते हैं हम लोग। Now we will be discussing थोड़े 2 बीच के टॉपिक्स है। ये सब चीजें तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे। हाँ, तो I want to discuss one concept called as a Heisenberg। 2 कंसेप्ट है जो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, थोड़ा हेवी डोज हो जाएगा नहीं तो।
एक सिंपल प्रिंसिपल पहले लेता हूं मैं, उसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं एंड देन विल गो फॉर द एक्चुअल पार्ट, मतलब जो जरूरी है इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो हम लोग अभी देखेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्यों पढ़ना है? Now we are talking about, we will be talking about the electron density. इसके आगे हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है ये पहले समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ये है, इट इज इम्पॉसिबल to determine, it is impossible to determine position and velocity of the particle, simultaneously. So it is impossible to determine position and velocity of the particle simultaneously. Now this statement was given for microparticles like electrons, other particles which are moving. Now this concept, this principle revolutionized the structure of atom. Rather, I'll say it will give you, well, there is no concept of position of electron. There is a concept, मतलब वहां पे जो था 2-dimensional structure, जैसे मैं circular path बोलता हूँ, circular path, the electron is flowing in a circular path. जैसे मैं circular path के बारे में बात करता हूँ, तो वो concept यहाँ पे invalidate होता है। अभी यहाँ पे आता है probability of finding the electron। मतलब कैसे, देखो ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूं। समझो एक ये 3-dimensional स्ट्रक्चर है अपना, है ना, ये 3-dimensional स्ट्रक्चर है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन जैसे मैं बोलता हूं यहाँ पे है, तो उसका वेलोसिटी हो जाता है 0। ओके, उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो जैसे इसका वेलोसिटी 0 हो गया, इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। बट ऐसा कभी होता नहीं। तो इसका मतलब अगर वो मूविंग है, तो वो मूविंग 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशन में इधर किधर भी हो सकता है। आई एम टेलिंग यू, दिस इज नथिंग बट not many electron, I'm talking about only one electron. So 3-dimensional state, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है 3 डायमेंशन में। इसके लिए ना मैं एक एनालॉजी देता हूं लोगों को एक्सप्लेन करते समय। समझो मैंने एक जार दिया, जार, ग्लास का जार दिया ऐसे, एंड इन दैट जार, उस जार में मैंने हाउस फ्लाई था ना, हाउस फ्लाई, वो डाल दिया। जैसे मैं हाउस फ्लाई अंदर डाल दूंगा, वो क्या करेगी? वो बाहर आने की कोशिश करेगी ना। तो उस पूरे इसमें वो इधर, इट इज गोइंग टू कोलाइड ऑन दिस, 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 मतलब एवरीवेयर जितना पॉसिबिलिटीज है वो रैंडमली मूव करेगी पूरे इस वॉल्यूम में। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब इफ आई एबल टू ट्रेस आउट, अगर मैंने इसका
इसको अगर फ्लाई को अगर समझो मैंने कुछ सेंसर्स लगाए, डिटेक्टर सेंसर, and if I studied, then I will have a three-dimensional geometry of that shape. वो फ्लाई जैसा ही ये इलेक्ट्रॉन है. Now in that case, अभी क्योंकि मैंने सेंसर लगाया है and it is not a micro body, it is a macro body, I can detect it. I can detect its position and even I can detect velocity simultaneously. But in this case, it is not possible. So Heisenberg uncertainty principle says it is impossible to determine position and velocity of the particle simultaneously. Okay, please write down this statement. Statement लिखो. इसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या है ये मैं पहले समझा देता हूं. मतलब उसका सिर्फ हम लोग को इक्वेशन याद रखना है. इक्वेशन है ये है डेल्टा एक्स बोलते हैं. सी व्हेनेवर आई से अनसर्टेनिटी, इसका मतलब देयर इज ऑलवेज सम एरर एसोसिएटेड विद इट. सो डेल्टा एक्स इज कॉल्ड द एरर और uncertainty in position of an electron. Position of an electron. And delta V is error or uncertainty in position of the electron. अब ये जो अनसर्टेनिटी एनालिसिस के ऊपर से इक्वेशन आया. सी देयर आर अनसर्टेनिटी एनालिसिस, मतलब कोई भी इवेंट जब होता है, कोई भी इवेंट नेचुरल और आर्टिफिशियल इवेंट होता है, तो डेल्टा वी विल बी द वेलोसिटी, राइट? वेलोसिटी. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जरा सुपर एक्साइटेड हो चुका हूँ. आई एम मेकिंग बिग मिस्टेक. वेलोसिटी. तो जब भी उसमें अनसर्टेनिटीज हम लोग मेजर करते हैं, तो इन दैट केस इट इज डन बाय सम एनालिसिस. सो सेम एनालिसिस वाज डन बाय हाइजेनबर्ग and he has given delta x into delta v is greater than or equal to h upon 4 pi m, where h is a Planck's constant, m is the mass of electron or mass of that particle. Okay. We know that mass into velocity is what? Momentum. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा p. सो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया एरर और uncertainty in momentum. Therefore, the above equation becomes. अच्छा, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नेटवर्क का इश्यू लग रहा है मेरे को. डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी is greater than or equal to h upon 4 pi. Therefore, delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. ये भी इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन है, right? Yes, everybody done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. How science is useful और कैसे कैसे आगे कंसेप्ट आगे आए, उसके बारे में अभी हम लोग बात करें. ये देखो, मतलब ये जस्ट क्वेश्चन है, ये अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ओके, तो यहाँ पे हम लोग डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस कितना था, कुछ याद है? डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस बताया था मैंने, कितना था?
हेलो, अरे बोलो। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस कितना था? Nobody is saying. Rutherford's theory. Watson. Can you hear me? Yes, sir. तो आंसर दिया नहीं तूने. So when I said diameter अभी of, आ रहा था. हाँ, diameter of nucleus कितना है? 10 raised to minus 15 मीटर. तो इसका sir. मत, हाँ बोलना. Radius is 10 raised to minus 15. तो रेडियस आणि डायमीटर में क्या फर्क होगा बताना. इट इज एट द सेम ही होगा ना. 10 raised to minus 15 अगर उसको मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो दैट विल बी 5 into 10 raised to minus 16. द ऑर्डर इज सेम ना. यस सर नो? Yes, sir. ऑर्डर विल बी सेम, राइट. चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर 0.5 into 10 raised to minus 15. Is that okay? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा हो गया अपना. 5 into 10 raised to minus 16 मीटर में लिख देता हूँ. तो इसका मतलब what do you mean by this? ये जो मैंने लिखा है ये सही है? ये लिखा है वो सही लिखा है मैंने? बोलो. The maximum uncertainty in the position of electron is 5 into 10 raised to minus 16 मीटर. बराबर ना? हेलो. Yes, sir. Yes, Now, sir. what is the mass of electron? 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. So now let us calculate uncertainty in the velocity of electron. So delta x into delta v मैं equal to मान लेता हूं h upon 4 pi m. तो डेल्टा v is equal to h कितना आता है? 6.63 into 10 raised to minus 34 divided by 4 multiplied by 3.14 multiplied by 9.1 into 10 raised to minus 31 और डेल्टा x कितना है? 5 into 10 raised to minus 16. जरा बता मुझे ये कितना आ रहा है आंसर जरा. इसका जो भी आंसर आएगा उसका मीनिंग ये है, if the electron has to present in the nucleus its maximum velocity मतलब uncertainty in a position कितना होना चाहिए, एक uncertainty in a velocity कितना होना चाहिए, जो आंसर आएगा वो. चलो फिर मुझे करके बताना पड़ेगा ये, है ना. चेक किया. अभी देखो डेल्टा v इज इक्वल टू, ये मैं अप्रोक्सीमेटली 2 लेता हूं, ये हो गया 2, है ना. तो 10 raised to minus 34 पर्पसली कर रहा हूं मैं ये सब चीजें, डिवाइडेड बाय बिकॉज यू मेड फ्यू मिस्टेक्स 5, करेक्ट. तो ये 9 है ना, 18 हो गया. 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ गया? 1/90. सर बोलना, हाँ बोलना. मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू ये कितना हो जाएगा? 90. सही किया ना मैंने? माइनस 34 प्लस 31 प्लस 16. तो दिस इज हाउ मच? 19 होगा ये. 90. सर इट्स 13. 19 हाँ 13 होगा. 13 होगा. 13 होगा. करेक्ट. So it should be 30. So 1/90 कितना आता है? 0.1, 0.01, है ना.
Yes, sir. 1/90 कितना था? 0.0, approximately 0.01 multiplied by 10 raised to 30, मतलब 1 into 10 raised to approximately 11 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 पावर के 10 raised to 10 के आसपास आंसर आना चाहिए. नाउ अभी मुझे ये बताओ, विच सब्सटेंस नहीं बोल सकते हम लोग, विच हैज द मैक्सिमम वेलोसिटी वी नो. Light. What is that? Light. What is that? What is the 3 light? into 10 raised to 8. 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. और ये देखो, ये क्या है? 1 into 10 Velocity raised of to 11. electron, velocity of electron that should be present into the nucleus. इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में जाना है, रहना है, तो उसको this much velocity it should have, which is not at all possible. Therefore, electron cannot exist inside the nucleus. ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया. समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? मैथमेटिकली प्रूव हो गया. Yes, everybody got this point? Here, by using Yes, sir. Heisenberg's uncertainty principle. It's a new thing for you today. ये न्यू लर्निंग है आज का. यहाँ पे नीचे लिख देना, therefore, ये इतना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी मैटर का है ही नहीं अर्थ पे, तो मतलब जो हम लोग को पता है अभी तक नहीं है. एंड यू नो दैट अगर हम लोग कोई भी बॉडी कंसिडर करें विच हैज अ मास, ओके, उसका तो वेलोसिटी है ही नहीं इतना, 3 into 10 raised to 8 भी नहीं है. मतलब आगे जाके तुम लोग एक कंसेप्ट पढ़ोगे कि जब कोई भी बॉडी when it is moving with a high velocity, समझो 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, it always loses its mass. ओके, ये आगे जाके तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे. Is that clear? तो यहाँ पे नीचे सेंटेंस में लिख लेना, therefore electron cannot exist inside the nucleus. Okay. कैलकुलेशन एक बार तुम लोग खुद से चेक करना वापस एक बार. एवरीबॉडी प्लीज चेक द कैलकुलेशन. चलो, let us go for the a new concept. ये है ऑर्बिट, और ये एक नया टर्म मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ऑर्बिटल. ऑर्बिट का मतलब होता है सर्कुलर और एलिप्टिकल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ऑर्बिटल का मतलब होता है, ऑर्बिटल का मतलब होता है 3-dimensional probability of finding an electron. क्या है? 3-dimensional probability. So orbital may be defined as the region or the space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. Okay, orbitals do not define path of electron. Rather, it defines only probability of electron being in a various region or space around the nucleus. I'll read that part. Yes. Okay. Okay, so okay.
just look at here. Just now I spoke about the probability of finding the electron. मैंने क्या बताया था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई. मतलब मैंने क्या बताया, ये अगर न्यूक्लियस है, सेंटर न्यूक्लियस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है इन दिस स्पेस, वो कहां पे भी हो सकता है ऐसे. तो जरूरी नहीं यही शेप, मतलब वो अलग अलग चीजें हैं. वो कैसे होगा हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, मतलब या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके समझ में आ रहा है? तो ये एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तुम लोग के लिए, ऑर्बिटल. The new concept I'm going to introduce over here. An orbital is defined as the region or a space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum. मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी किधर है? इधर है. राइट? समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी इसका एक एनालॉजी देता हूं. घर में चींटी है कि नहीं है वो देखना है, तो कैसे देखेंगे हम? एंड्स. जस्ट ऐड फ्यू पार्टिकल्स ऑफ शुगर और रोक छोड़ देना उसको, और अगर दिन भर वो पार्टिकल वैसे के वैसे ही रहे, इसका मतलब घर में एंड्स नहीं है. बट अगर थोड़ी देर में ऐसे लाइन लग गई तुम लोग की, तो वहां पे इसका मतलब क्या? वहां पे चींटी है. समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अराउंड दिस न्यूक्लियस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दीज एंड्स. अभी वो जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही होगा, वो ऐसे भी जा सकते हैं स्ट्रेट लाइन, मतलब उनके लिए वो स्ट्रेट लाइन है, या ऐसे जा सकते हैं. ओके समझ में आ रहा है? तो दिस इज नथिंग बट, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द एंड्स. तो ये जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है, या ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. अंडरस्टूड? यस. सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट और ऑर्बिटल. ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस क्या है? ऑर्बिट, it is a well defined circular path followed by revolving electrons around the nucleus. मतलब जैसे अपना सन और मून होता है वैसे. Orbits, it is the region of the space around the nucleus where electrons is most likely to be found. क्या है? Most likely to be found. Okay, maximum probability of finding the electron. It represents planar motion of electron. ऑर्बिट का मतलब प्लेनारिटी, एक प्लेन में हो जाएगा. ऑर्बिटल्स, इट रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. ऑर्बिट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2n², where n stand for number of orbit. ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा था लोअर स्टैंडर्ड में. अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2. और अगर सेकेंड शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 8. ऑर्बिटल्स cannot accommodate more than 2 electrons. Orbitals cannot accommodate more than 2 electrons. We will discuss that. Wait for some time. Orbits are circular in shape. Orbitals have different shape. Spherical होता है, dumbbell होता है, double dumbbell होता है. Okay. Orbits are non-directional in characteristic, hence they cannot explain the shape of molecule. Orbits जो होता है ना, उसका क्योंकि सर्कुलर पाथ है ना, उसमें क्या डायरेक्शन होगा? सर्कल को डायरेक्शन नहीं होता है. डायरेक्शन मतलब वो कौन से along the x axis है, along the y axis है. Orbitals have certain directional characteristic except s orbital. वो क्या? वो पढ़ेंगे हम. Hold on for some time. मतलब ये कुछ चीजें ऑर्बिटल के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसमें से कुछ चीजें हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं. Concept of well-defined orbit is against the Heisenberg uncertainty principle. मतलब क्या? जब मैं सर्कुलर पाथ बोलता हूँ तो इसका मतलब मैं उसका पोजीशन फिक्स कर रहा हूँ ना,
और जब मैं पोजीशन मतलब वेलोसिटी भी पता चला और पोजीशन भी पता चला, which is not possible. Orbitals में yes, Heisenberg uncertainty principle satisfied. It is impossible to determine position and velocity of the particle simultaneously. Understood everybody? Yes. Please write down these points. Write down this distinguishing point between orbits and orbitals. अच्छा, ये orbit का definition लिखा? Yes. Please, तो एक काम करो, distinguish बाद में लिखना है, ये पहले लिख लो. Write down this part. So I wanted to copy the definition. Okay. Next year we'll be discussing so many other things. Quantum numbers के बारे में पढ़ेंगे, quantum mechanical model के बारे में, और मुझे लगता है स्टेट बोर्ड वालों को एक कंसेप्ट था पीरियोडिक टेबल में. They have that 4 block, S block, P block, D block, F block. Okay, तो वो कहाँ से आए? S, P, D, F, Q कहाँ से आया वो? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो तुम लोग को आगे जाके जिंदगी भर याद रखना है. ओके, सो दोस थिंग्स आर देयर. 2 concepts आई स्किप, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो they are not that much important because you will be studying those concepts again in physics also. तो केमिस्ट्री के हिसाब से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बाद में दे दूंगा. ओके, उसके लिए जो डिटेलिंग है वो तुम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं. अदर केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अभी इसके आगे चालू होगा. केमिस्ट्री के लिए जो जरूरी है वो इसके आगे चालू होगा. ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. अभी अपना लेक्चर थर्सडे रहेगा मॉर्निंग 8 o'clock. दोज हैव नॉट, कुछ लोगों को आदत होती है वो पीडीएफ आया तो देखने का नहीं, छोड़ देते हैं, डाउनलोड करते ही नहीं वो लोग. तो प्लीज चेक टाइम टेबल. शाम को आज रात को 8 बजे रहेगा तुम लोग का सब्जेक्टिव टेस्ट. इज दैट ओके? 8 to 9 1 hour टेस्ट. ठीक है, चलो बाय. Sir, बोलना. how many questions?